Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history according to syllabus. New syllabus, the chapter 1, writing and city life. Again, here I want to inform you that this is your chapter 2, writing and city life, chapter 1 that has dictated by CSC this year from your syllabus. So that's why we will read today your chapter 2, writing and city life. In this chapter, in my previous video, I was already discussed about the Mesopotamian condition. In the introduction part, it was clearly explained by me that the Mesopotamia, one of the oldest civilization in world, it was flourished in the Iraqian Republic nowadays. The name Mesopotamia derived from the Greek words Mesos and Potamus. Their meaning is Mesos, it means middle, and Potamus, it means river. So that's why the civilization flourished between two rivers, Euphrates and Tigris. That is famous nowadays, Mesopotamian civilization. I mean to say that it is not, it was also called the Mesopotamian civilization. कहा जाता था, आज भी कहा जाता है. दो नदियों के बीच का ये भाग, नदियों का द्वाबा, जो अपनी उत्पादक क्षमता के लिए, उत्पादन के लिए फेमस था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेसोपोटामिया that was famous for their city life, their astronomy and mathematics, their writings, and the voluminous huge amount of the literature. What I am saying, I think you are getting it. आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे. इन चीज़ों पे हमने बात की. Dear student, this is what I am saying. This is what. This chapter is very important because in this chapter we will be aware that कि किस तरह से, by which way the urbanism was developed. The first urbanization emerged how? The place where it was emerged. What was the reason behind that? What were the causes in the development of urbanism? And before we start your topic, next topic is the, I think what we have completed the Mesopotamian and its geography, and the first topic is introduction part. The second topic, the significance of urbanism. The significance of urbanism. Okay. Urbanism. Okay. Significance of urbanism. This is our next topic. Before we start this topic, I would like to remind you the previous topic. Previous topic is the geographical condition of Mesopotamia and its geography. Previous topic, Mesopotamia and its geography. That is the point. That is the very important. ये जो points था, last point, geographical condition, demography of the Mesopotamia. It was also discussed by me. मैंने आपसे कहा था कि मेसोपोटामिया उस रीजन में था जिसकी डेमोग्राफी एक समान नहीं थी. मैंने आपसे कहा था, आपको जब मैंने बताया था तो मैंने कहा था कि इराक इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स environment. In the northeast lie green, undulating plains, gradually rising to tree-covered mountains range with a clear streams and wild flowers with enough rainfall
to grow crops here. It means, having read this line, you can easily understand that in Mesopotamia, mountains, plateau regions, and even desert also, every was there. सब कुछ था वहाँ, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग चौकी, वो अलग अलग जगहों पर फैला हुआ था. अर्बनिज्म एक पूरे सिनेरियो में दूर तक फैला हुआ था, और ये बता रहा था कि ये जो परिस्थितियाँ थी, क्लाइमेटिक चीज़ें थी, वो भी कहीं न कहीं इनको हेल्प कर रही थी. बट इट डज नेवर मीन दैट कि ओनली दीज काजेज फॉर द प्रमोशन ऑफ द अर्बनिज्म. ये ही सिर्फ कारण नहीं थे कि अर्बनिज्म प्रमोट हुआ. आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दैट कि इन विच पोर्शन urbanization was developed. I was discussed that area was the southern portion, the deserted land, deserted area, southern part of this civilization, deserted area. That was the place where first time city emerged. First time city emerged. That is the very important. ये जो फर्स्ट टाइम सिटी इमर्ज हुआ, पहली बार सिटी इमर्ज हुआ, उसमें ये बात आई, उन चीज़ों के लिए क्या ये काजेज, जोग्राफिकल कंडीशंस काजेज, ये लैंड मार्फोलॉजी काजेज, ये रिवर्स काजेज रहे होंगे. ऑब्वियसली इनका रोल उसमें रहा होगा सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी के डेवलपमेंट में. लेकिन सिर्फ यही एक काजेज, एक सिंपल एक काजेज को लेके कहें कि ये एक काजेज था जिसकी वजह से सिटी बनी होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते. हमें इन सारे काजेज को साथ लेके एक साथ करने के बाद हम कह सकते हैं इन सारे काजेज को मिलाकर के वहाँ पे सिटी का डेवलपमेंट हुआ होगा. आई होप यू हैव रिमेंबर, I was discussed this point in my previous class where I was told you in the southern part of city where there is the southern part of this civilization, Mesopotamian civilization, there were two cities, Sumer and Akkad. Sumer and Akkad, there were two cities. Then after, I also taught you in my previous class that the Babylon was the famous city after some time, so that's why the people who lived in that city, they called Babylonian. It was situated in the southern part. And in the northern part, the Sumerian, Assyrian. In the northern part, Assyrian, they reached in the north part of the Mesopotamia during 1000 BC near about. And northern part of India, that was called the Assyrian. तो उत्तर में रहने वाले लोग असीरियन कहे गए, दक्षिण में रहने वाले लोग बेबीलोनियन कहे गए. दक्षिण में दो नगर थे, सुमेर और अक्काद. यही सुमेर और अक्काद जो थे, सबसे पहले इन्होंने ही लैंग्वेज का यूज किया. मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीनतम भाषा थी, वो थी सुमेरिया. आई मीन टू से दैट द टू प्रोमिनेंट सिटी सुमेर एंड अक्काद, द फर्स्ट language which was used by this civilization, that was Sumerian civilization. Sumerian language, the language of Sumerian language which was used by the Sumerian people. The people who lived in Sumer, जो सुमेर में रहते थे, उन लोगों ने जिस भाषा को बोला उसे सुमेरियन लैंग्वेज कहा गया. और ये भाषा ये भाषा मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीनतम भाषा थी. उसकी कुछ समय बाद अक्काडियंस ने भी, जो अक्काद के थे रहने वाले, उन लोगों ने भी भाषा बनाई और अक्कादियन भाषा का प्रयोग किया उन लोगों ने. और धीरे धीरे सुमेरियन को अक्कादियन ने रिप्लेस कर दिया. सुमेरियन भाषा की जगह अब अक्कादियन बड़े पैमाने पे बोले जाने लगे. आश्चर्य की बात यह है कि सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था, when Alexander was invaded India during 323 to 326, Akkadian language was used by their army. तो ये भाषा उनके लोगों के द्वारा सुना जाता था, ये भाषा उनके द्वारा लोगों द्वारा बात की जाती थी. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अक्कादियन थी. एंड आफ्टर 1400 BC द लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड, द अरामाइक इज सिमिलर टू द हिब्रू इज वेरी फेमस इन विच एरिया? इट वाज फेमस इन Iraqi regions. Nowadays also the some Iraqi kabilas uses that language, the Hebrew. इस तरह से हमने कई सारी भाषाओं की बात की. मैंने आपसे देखिए लैंग्वेज की बात की, तो मैं लैंग्वेज मैंने कहा कि सबसे पहले क्या लैंग्वेज आया? सुमेरियन पहली लैंग्वेज थी. दूसरी लैंग्वेज क्या है? अक्काडियंस. उसके बाद उन लोगों ने कौन सी भाषा इस्तेमाल की? उसके बाद अरामीक.
और फिर इसके बाद अरामीक जो थी ये किससे मिलती जुलती है? इब्रूस। ये सुमेर के लोग, सुमेरी बोली जाती थी, अक्काद, और फिर ये दोनों इसी के रीजन से, ये दोनों शहर थे सिटी जिसके बारे में हमने बात की, सौदर कुशल शहर। ये हुआ एक जनरल चीज़ें, ये हुई एक जनरल बात, इन चीज़ों में ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट। आई होप। अब इनके बाद भाषा बनी। मैंने आपको इसके पहले जोग्राफिकल मेसोपोटामिया एंड इट्स जोग्राफी के बारे में बात की। मैंने कहा कि मेसोपोटामिया की जो जोग्राफी थी वो जोग्राफी एक बड़े क्षेत्र में फैली थी। जोग्राफी में कई सारी चीज़ों को बताया गया था। उसमें ये कहा गया था कि ये किन किन रीजन में कुछ प्लेटिव रीजन्स थे, कुछ नदियाँ थी, कुछ पहाड़ थे, और कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे मरुस्थल भी थे। तो यहाँ पे बेसिक जो ऑक्यूपेशन था, छोटे क्षेत्र पे कृषि की जाती थी, फार्मिंग होती थी, और ज़्यादातर क्षेत्रों पे ये लोग पास्टर्स इंडस्ट्री को डेवलप किए थे, पशुपालन करते थे। ये पशुपालन के साथ साथ नदियों में फिशरीज का भी काम भी कर लिया करते थे। तो तीन इनके ऑक्यूपेशन हो गए। एक हो गई इनकी ऑक्यूपेशन में फार्मिंग, पहले फार्मिंग होती है, पहले पास्टोरलिज्म कर लीजिए, पास्टोरलिज्म। दूसरी बात, पास्टोरलिज्म के बाद जो दूसरी बात हुई, पास्टोरलिज्म, इसको फार्मिंग कर दीजिए, और फार्मिंग के बाद तीसरी, ये क्या करते थे? फिशरीज करते थे, और फिशरीज के बाद ये लोग ट्रेड भी कर दिया करते। ये मेन ऑक्यूपेशन था मेसोपोटामिया के लोगों की, जो वहाँ पे ये लोग रहते थे, यहाँ पे लोगों का नाश हुआ। तो इन ये ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया में शहरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण कारक बनी। जोग्राफिकल कंडीशंस में कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने यहाँ शेयर करूँगा। जोग्राफिकल कंडीशंस में क्या थी, जिससे सिटी लाइफ डेवलप भी होगी। आइए इन चीज़ों को एक बार समझ लें, फिर हम अर्बनिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। अर्बनिज्म के लिए फर्स्ट जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन के बाद इस जोग्राफिकल कंडीशन में क्या क्या लेंगे आप? क्या क्या था वहां पे? यहाँ पे माउंटेन्स भी था, यहाँ पे रिवर भी थे, यहाँ पे प्लेन्स भी था, यहाँ पे कुछ ट्री कवर प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन भी था। तो ये सारी चीजें, फिर साथ ही साथ इनके इन प्लेट्यू रीजन के बाद साथ ही साथ ये लोग इन कॉजेस को अपने लिए एक यूजफुल एलिमेंट्स के रूप में यूज किया। एग्रीकल्चर, फार्मिंग भी अच्छी की इन लोगों ने। तो पॉपुलेशन, साइंस एंड टेक, देन आफ्टर कल्चर। ये सारी चीजें इन्हें क्या कर रही थी? इन्हें एक प्रॉपर फॉर्म में डेवलप कर। तो अर्बनिज्म की ये सारे रीजन रहे होंगे, जिससे कि क्या हुआ, ये अर्बनिज्म, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। पहले तो सिग्निफिकेंस क्या था अर्बनिज्म का, यहाँ पे जो शहर थे इन शहरों की क्या महत्ता रही होगी, और फिर इन शहरों के डेवलपमेंट में ये सारे कॉजेस किस तरह से रहे होंगे, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बुक व्हाट इज गिवन देयर। I hope that behalf of that point you can easily understand that how can the new type of city emerge in Mesopotamia. नए शहर मेसोपोटामिया में कैसे बसे इनमें। अब कुछ शहरों के भी नाम हम आपको यहाँ मेंशन कर दें कि कौन कौन से शहर बसे। अब
शहरों के नाम यही लिख देते हैं। कुछ शहर है आपके बुक में, मैं आपके बुक से ही इस पॉइंट उठाऊंगा। मैप अगर आप देखें, इफ यू विल ऑब्जर्व यू मैप which is given in your book, where already mentioned some city name. City name is first Babylon, Mari, Asur, निर्मूल, असीरिया। ओके, वन बाय वन चलते हैं। पहले सिटी कौन बनी? सुमेर, फिर देन आफ्टर अक्काद, then after Mari, then after Asur, then after Baghdad, then after Baghdad, Nineveh, then after Nimrud, then after Babylon, etc. So this was the place, Mesopotamian place, which is very very important. I hope you have to all aware of that. It is given in your map. अगर आप मैप पे देखें तो सारे प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं। ये एक प्रोमिनेंट सिटी के रूप में थे। मैंने आपसे कहा कि सुमेर प्राचीनतम उसके शहर थे, अक्काद शहर था जिसके नाम पे भाषाएं बनी, और ये भाषाओं के बाद इन लोगों ने अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को और फ्लोरिश किया। दूर तक के क्षेत्रों में 2000 BC तक आते आते पूरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने पूरे मेडिटेरियन रीजन्स को कवर कर लिया। सेंट्रल एशिया के साथ साथ अफ्रीका के कुछ रीजन्स को और एक बड़े प्लेस को पूरे अरेबियन पेनिनसुला में फैल चुकी, मतलब एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था। ये स्टेपी रीजन्स में था। स्टेपी रीजन्स पास्टोरलिज्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो पास्टोरलिज्म इंडस्ट्री डेवलप हुई। पास्टोरलिज्म इंडस्ट्री से उन्हें क्या मिला? मिल्क मिला होगा, मीट मिला होगा, वुल मिला होगा, कुछ प्रीसियस थिंग्स जो जानवरों से प्राप्त होती हैं, खाल, स्किन, हड्डियाँ, उनके बोन्स, ये भी चीज़ें वो उनसे लिए रहे होंगे और इसके एवज में वो कुछ खाने की चीज़ें प्राप्त करते रहे होंगे। तो ये थी पूरी ऑक्यूपेशंस। और ये सब चीज़ें किसको डेवलप कर रही थी? नए शहरों के विकास को। ये सारी चीज़ें क्या बनाना चाह रही थी? ये सारी चीज़ें बनाना चाह रही थी किस चीज़ को? पूरी की पूरी मेसोपोटामियन शहर को एक नए रूप में। और इसीलिए शायद दैट वाज द कॉजेज बिहाइंड द एमर्जेंस ऑफ द न्यू सिटी फर्स्ट टाइम इन मेसोपोटामिया। सारे कॉजेज रहे होंगे मेसोपोटामिया में शहर के। अब आइए बुक में देखते हैं कि आपका बुक क्या कहता है। आपका बुक इस पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करता है? ऑर्गेनिज्म, द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को कैसे वो बताता है। टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या क्या इसमें पॉइंट आएंगे? हमने आपको इतने सारे पॉइंट बता दिए। अब बुक पे आते हैं, बुक क्या कहता है उसको देखते हैं और आई थिंक कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को, इस पैराग्राफ को आज। तो बुक कहता है लेट मी रीड योर बुक एंड दिस पैराग्राफ। According to your book, it is very clearly explained by author that the cities and towns are not just a place with a large population. It is a when an economy develops in the purpose other than food production, that it became an advantage for the people to
to cluster in towns. Urban economies comprise, besides food production, trade, manufacturers, and service. City people thus case to be self-sufficient and depend on the products or the services of other people. There is continuous the interaction among them. For instance, the cover of stone seal requires bronze tools that he himself cannot make, and colored stone for the seal that he doesn't know where to get. The specialization is fine carving, not trading. The bronze tool makers doesn't himself go out to get the metal, copper and tin. Besides, he needs the regular supplies of the charcoals for fuel. The division of labor is a mark of urban life. Okay, here a very interesting fact is explained by author in your book. Author want to inform you that city, the main quality of city is not their population, first of all. The main specific quality of that area where they were build or develop the new type of industries. जैसे कहता है वो कि शहरों में क्या बना, शहरों में क्या है, तो कहता है कि शहरों में सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि वहाँ पे रहने वाले कर्मचारी ये नहीं जानते थे कि लोहा कहाँ से आया, वो ये नहीं जानते थे कि वो जो स्टोन आई जिसको उन्होंने कार्विंग किया, अच्छे से स्ट्रक्चर किया, उसकी बढ़िया से कटाई छटाई की और एक स्वरूप दिया, वो मार्बल कहाँ से आई। उन्होंने, उनके पास जो कला थी, टेक्नोलॉजी थी, टेक्निक थी, वो पत्थरों को तराशने की, उन्होंने उसको अच्छे से तराशा। जैसा कि मैंने कहा, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे, जबकि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ पे विकसित रही होंगी। अन्य आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ थी क्या होंगी, कहता है ये जो गतिविधियां थी, दीज एक्टिविटीज प्रमोट द पॉपुलेशन, दिस एक्टिविटीज प्रमोट द अर्बनिज्म, जनसंख्या को भी बढ़ाई होंगी और अर्बनिज्म को बढ़ाया होगा। इसके फलस्वरूप जो मार्केट थे वो काफ़ी डेंस हो गए, काफ़ी घने बसने लगे, और ऐसे परिस्थितियों में लोगों को कस्बों में इकट्ठे रहना उसके लिए फायदेमंद सिद्ध होता था, विशेषकर इसलिए कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब यहाँ पे जितनी अधिक संख्या में लोग होंगे उतने अधिक काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, और ये सारे लोग जो प्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको मार्केट की जरूरत होगी, मार्केट में जाकर बेचेंगे, पूरी चैनल डेवलप होगी। नगर के लोग डिपेंडेंट नहीं थे वस्तुओं के लिए, वो वस्तुएं कहाँ से आती थी, रॉ मटेरियल्स गाँव से आती थी, विलेज से आती थी, और ये विलेज, ये गाँव उन्हें और ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करते थे। उनके बीच आपस में एक्सचेंज होते रहते थे, वो सामान के बदले सामान, बार्टरिंग सिस्टम में भी करते रहे होंगे एक्सचेंज, या कैश का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बार्टरिंग सिस्टम में फेमस रहा होगा। ज़्यादातर इतिहासकारों का यही मत है, यही मानना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता था। इसका उदाहरण है कि पत्थर, ये एक मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती, वह स्वयं औजार बना नहीं सकता था, टूल्स बना नहीं सकता था, इसके लिए उसे क्या करना पड़ा होगा, टूल्स को मार्केट से खरीदना पड़ा होगा। मुद्राओं को बनाने के लिए रंगीन पत्थर का वो प्रयोग किए होंगे, जिसमें कुछ लोग नक्काशी, कुछ लोगों को अच्छे से काम करने वाले लोग चाहिए थे, तो ऐसा एक वर्ग बना होगा। फिर बाद में कांसे के औजार बनाने वाले लोग धातु, मेटल, ब्रोंज, रांगा, टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाते थे, ये भी बाहर से मंगाया जाता होगा। साथ ही ईंधन के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया, वो भी बाहर से आता होगा। तो मतलब इट मीन्स क्या हो रहा था, वस्तुओं को ये लोग बाहर से रॉ मटेरियल्स के रूप में बनाते रहे होंगे, और ये चीज़ें क्या करती होंगी, डे बाय डे, धीरे धीरे एक नई चीज़ों को डेवलपमेंट का कहा बन रही होंगी।
उत्पादन एक्टिविटीज़ के लिए प्राइमरी टर्सरी है, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन वेयर इन द इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्लास 9 की बुक में ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी क्लास 9 की। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। प्राइमरी कम है लेकिन सेकेंडरी टर्सरी ज़्यादा है। लोग बाहर से सामानों को मंगा करके, रॉ मटेरियल्स को मंगा करके व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहर निर्माताओं के लिए ईंधन, फ्यूल, मेटल, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि की जरूरत चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। इसके लिए एक प्रॉपर यूनाइटेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ग्रेनरी, उनके लिए भंडारण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी शहरों में था, शहरों में इसका भी विकास हुआ। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक ऐसे संगठनों का निर्माण होना जो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे थे। छोटे छोटे ग्रुप्स का बनना, और ये ग्रुप्स इन चीज़ों को अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह तक प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे। कांसे के औजार बनाने वाले लोग, डिवीज़न ऑफ लेबर, इनका सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मेंशन करना जरूरी है। डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक तरीके से क्या था, एक तरीके से मेसोपोटामियन अर्बनिज्म का इसका एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिक क्वालिटी थी। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, कई पार्टी सबके काम बांट दिए। कोई मेटल ला रहा है, कोई रॉ मटेरियल्स ला रहा है, रॉ मटेरियल्स शहरों में पहुंची, शहरों में पहुंची तो एक ग्रुप ने उसको क्या किया, यहाँ पे ग्रुप लिख दीजिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लिख दीजिए, यहाँ पे सिटी, वर्कर्स लिख दीजिए। ग्रुप के बाद ये कहाँ पहुंची थी, ग्रुप्स इट मीन्स कई जगह पे इसको पहुंचाने वाले, फिर यहाँ पे पहुंचती होगी ये कहाँ पे, जहाँ से वो फैक्ट्री में, और फिर यहाँ से प्रोडक्शन होता होगा। प्रोडक्शन के बाद ये गोडाउन्स, फिर यहाँ से ये मार्केट। ये है क्रम। इन चीज़ों के आधार पे आप आसानी से इन बातों को समझ सकते होंगे, इजीली इस चीज़ को आप समझ। ये चैनल था डेवलपमेंट, ये तरीका था, इस तरह से शहरों का विकास हुआ। कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अगर और चीज़ों को देखें तो कहता है कि इनके पास अपने गोदाम भी रहे, शहरों से अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं, और उसके संग्रहण, उनके इकट्ठा करने के लिए एक स्थान का प्रयोग किया जाता था, उसको यहाँ पे इनको रखा जाता था। ये गोदाम रहे होंगे। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार बर्तन चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब किताब लिखना भी पड़ता रहा होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि शहर में जो पीपुल होंगे उसमें कुछ लोग कमांड करते होंगे, कुछ अदर उसको कमांड, कुछ इनकी बातों को मानते होंगे, ओबे करते होंगे। अलग अलग मैं बना दे रहा हूँ, आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। कमांड करते होंगे, कुछ लोग उसको फॉलो करते होंगे, और फिर ये सिस्टम
रेगुलेट करती होगी अर्बन इकोनॉमी ऑफन रिक्वायर्ड द कीपिंग ऑफ द रिटन रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे लोग रिटन रिकॉर्ड्स को भी रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इन चीज़ों के प्रति क्या थे, इस तरह की सिस्टम को डेवलप किए थे, निश्चित रूप से अर्बन कल्चर के माने गए। आज इतना ही, कल की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।